નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આમ તો મોટાભાગે ક્રિકેટની આપણે વાતો કરતા હોઈએ, પણ આજે એક એવા ઇવેન્ટની વાત કરવી છે કે જે ઇવેન્ટ ગુજરાતમાં યોજાઈ ગયો, અમદાવાદમાં યોજાઈ ગયો અને નેશનલ લેવલનો ઇવેન્ટ જબરજસ્ત પ્રતિભાવ મળ્યો, પ્રતિસાદ મળ્યો, લોકોએ જોયો, લોકોએ માણ્યો અને ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતનું ભવિષ્ય પણ નેશનલ એથ્લેટિક્સની અંદર શાનદાર છે એવું ક્યાંક પ્રતીત કરાવવામાં ગુજરાતના ખેલાડીઓ સફળ પણ થયા. આ એક જુનિયર નેશનલ એથ્લેટિક ઇવેન્ટ થઈ ગઈ, જે ડિસ્ટ્રિક્ટ ભારતભરના જે અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સમાંથી આવેલા લગભગ 5500 જેટલા ખેલાડીઓ ઓર રાધર એથ્લેટ્સ અહીંયા આવ્યા અને અહીં આગળ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના મેદાન ઉપર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું એમણે. શાનદાર રીતે એથ્લેટિક્સ યોજાઈ ગયો. ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સ કે જેમાં ગુજરાતના ખેલાડીઓએ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, એટલે ખાસ કરીને ઉલ્લેખ, કારણ કે ક્રિકેટની ચર્ચા તો આપણે બહુ કરતા હોઈએ છીએ, ખાસ એથ્લેટિક્સ અને એ પણ જુનિયર એથ્લેટિક્સ. આ એક એવો કોન્સેપ્ટ છે જો અત્યારથી જુનિયર એથ્લેટિક્સને તૈયાર કરવામાં સરકાર એટલે કે ગુજરાત સરકાર જે પ્રયત્નો કરી રહી છે અને નેશનલ લેવલ પર જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે એ જો પૂરતા કરવામાં આવશે તો ભવિષ્યમાં આપણને એવા એથ્લેટ્સ પણ મળશે કે ઓલિમ્પિક્સના મેડલ જે આપણે એથ્લેટિક્સમાં ઓછા મળે છે એ ક્યાંક આપણને વધારે મળે. ખૂબ સરસ પ્રયત્ન અને ખૂબ સરસ સફળ આ ઇવેન્ટ વિશે વાત કરવી છે. મારી સાથે જોસેફ સેબાસ્ટિયન જોડાયા છે. જોસેફ, વેલકમ ટુ ધ શો. આપણે જોસેફ સાથે વાત શરૂ કરીએ પહેલાં નજર નાખીએ એક અહેવાલ ઉપર. અમદાવાદ, ગુજરાતમાં તાજેતરમાં સૌપ્રથમવાર યોજાયેલ 19મી નેશનલ ઇન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ જુનિયર એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધા ખૂબ સફળ રીતે સંપન્ન થઈ, જેમાં ભારતમાંથી આવેલ ખેલાડીઓમાંથી 72 ખેલાડીઓ મેડલ્સ જીતવામાં સફળ થયા હતા. ગુજરાત માટે આ મહત્વનો ઇવેન્ટ હતો, કારણ કે 7 ખેલાડીઓ મેડલ્સ જીતવામાં સફળ થયા છે. 7માંથી 3 એથ્લેટ્સને ગોલ્ડ, 3ને બ્રોન્ઝ અને 1 ખેલાડીને સિલ્વર મેડલ મળ્યો હતો. એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અને સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સહયોગથી યોજાઈ વિવિધ ઇવેન્ટ્સ જેવા કે ભાલા ફેંક, ગોળા ફેંક, લાંબી અને ટૂંકી દોડ, હાઈ જમ્પ અને પેન્ટાથ્લોનનો સમાવેશ થાય છે. ભારતના 615 જિલ્લાના 6000થી પણ વધુ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો અને પ્રથમવાર ગુજરાતના ખેલાડીઓએ પોતાના ઘર આંગણે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ખાસ કરીને છોકરીઓએ પણ 6 મેડલ્સ જીત્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પોર્ટ ડેસ્ક, अहमदाबाद. जो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से एथलेटिक मीट हुआ है, खास करके जूनियर खिलाड़ियों को जिस तरह से मैदान के ऊपर उतारा या तो ट्रैक के ऊपर उतारा है, एक अलग माहौल बना. मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे गुजरात में एक अलग माहौल बना, क्योंकि सबको ये था कि इस तरह का अगर इवेंट्स अगर सफलता के साथ गुजरात में या तो अहमदाबाद में आता है और होता है तो निश्चित रूप से एक एथलेटिक्स को भी एक पुश मिलेगा, और ख़ास करके जो बच्चे क्रिकेट के पीछे दौड़ा भागी कर रहे हैं उनको भी शायद एक नया रास्ता मिलेगा कि कहीं ना कहीं क्रिकेट के बिना भी और गेम्स जो है जहां पर हम अपनी कैरियर भी बना सकते हैं और ख़ास करके इसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान भी दे सकते हैं. सबसे तो पहले ये बताना चाहूँगा ये इवेंट कैसा था, क्योंकि नेशनल लेवल का इवेंट था. एज वी ऑल नो नेशनल गेम्स हमने किए हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हमने इवेंट करने में कोई कमी होगी, लेकिन ये जूनियर लेवल का जो एथलेटिक्स मीट हुआ, डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो ये हुआ, ये कहीं ना कहीं एक अलग माहौल खड़ा कर गया कि अगर इस पर्टिकुलर एज से अगर खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है तो हम इन फ्यूचर विल हैव अ बेटर एथलेट्स इन इवन ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स. जोसेफ, सबसे पहले नमस्कार अहमदाबादના બધા મિત્રોને. ये एक बहुत ही चैलेंजिंग था अपने लिए कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑल इंडिया मीट हमने करवाया, निट जैम, जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा
टैलेंट हंट के तहत जाना जाता है। और हमने इससे भी बड़े मीट्स किए हैं, जैसे कि नेशनल गेम्स हमारा हुआ 2 साल पहले। तो लेकिन उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 कैटेगरी के अपने बच्चे हैं, जो सबसे जूनियर्स में गिना जाता है, अंडर 14 एंड अंडर 16। और आपको पता है जैसे हम बड़े होते हैं तो बड़ों को थोड़ा कुछ नहीं मिलता है या उनको थोड़ा सुविधाओं में थोड़ा कम भी हो तो वो उसको समझकर या उसको कर सकते हैं, लाइक नो दे कैन मैनेज इट। बट व्हेन इट कम्स टू जूनियर्स, वी हैव टू सी दैट दिस आर द ग्रास रूट लेवल के अपने जो बच्चे हैं। तो अगर आपकी नींव में जितना अच्छी तरह से आप उसको देंगे, यही लेकर वो आगे बढ़ते हैं कि एक अच्छा सा एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जो अंडर 14 यानी इससे नीचे कोई कंपटीशन होता नहीं है नेशनल लेवल पे अपने इंडिया में कम से कम। तो उस लेवल पे जब बच्चा आता है, और सबसे बड़ी बात कि अपने हिंदुस्तान के हर कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट के, यानी मैंने सुना कि टोटल जो था 621 डिस्ट्रिक्ट्स जो फर्स्ट डे को जो हमको मिला था उसके हिसाब से, शायद हो सकता है और भी बड़ा भी हो, लेकिन इतना भी डिस्ट्रिक्ट आना कोई छोटी बात नहीं है। तो उसका आयोजन इतना बढ़िया तरीके से अपने गुजरात गवर्नमेंट ने किया, तो इसके लिए कोई अपने पास लफ्ज ही नहीं है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट और अन्य गेम जो बहुत पॉपुलर है, उसके अलावा भी ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स होता है जो इतने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन के साथ होता है। ये हमारे अहमदाबाद के जो दर्शक मित्र हैं उनको पता चला। तो ऐसे जब कॉम्पिटिशन होते हैं तो लोगों को पता भी चलता है कि भाई इस टाइप का भी कुछ स्पोर्ट्स होता है, तो उनको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे आपने कहा। तो काफी बढ़िया और अच्छा। अच्छा जोस, बिकॉज आप तो खुद इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपसे पूछना चाहूंगा कौन से इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए जो कि जूनियर लेवल की जो कंपटीशन थी, और कहाँ पर, इन विच स्पोर्ट्स यू फाइंड दैट देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट पार्टिसिपेटिंग? वेल, ये 2 कैटेगरी में हुआ था, अंडर 14 एंड अंडर 16 में। अंडर 14 में जो हुआ था वो ट्रायथलॉन था। ट्रायथलॉन में ए, बी और सी 3 ग्रुप बनाए थे। इसके अलावा एक किड्स एथलेटिक्स करके था। किड्स एथलेटिक्स का किड्स जैवलिन, जो हर एक बच्चा जो अंडर 14 में था उनको फेंकना था। ये इसलिए भी है कि नीरज चोपड़ा के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में और उसी तरह से ओलंपिक के गोल्ड मेडल के बाद कहीं एएफआई को लगा कि अपने इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर एक इवेंट ऐसा है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा टैलेंट है, तो उसको सराहने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए सभी बच्चों को, यानी अंडर 14 में आप बॉयज में हो, गर्ल्स में हो, ए बी सी तीनों ग्रुप में हो, लेकिन उसके 3 इवेंट, यानी ट्रायथलॉन में 3 इवेंट होता है। ए ग्रुप के अंदर था 60 मीटर था, लॉन्ग जंप था, हाई जंप था, और ये लॉन्ग जंप में 5 मीटर का अप्रोच में। तो ये एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इस ग्रुप को। पहले भी ये होता था, ये 19वां एडिशन है। पहले ये नॉर्मल इवेंट की तरह किया जाता था, तो कहीं एक्सपर्ट्स को ऐसे लगा कि हमें इतने यंग एज में इन बच्चों को स्पेशलाइज नहीं करवाना है, ताकि कोचेस उनके ऊपर ओवर यानी हार्ड वर्क करे या ओवर ट्रेनिंग करे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक चेंज किया। लास्ट ईयर से ये हुआ कि अंडर 14 और अंडर 16 में इंडिविजुअल इवेंट बहुत कम रखे, लेकिन पेंटा जैसे 5 इवेंट जो अंडर 16 में है और 3 इवेंट जो अंडर 14 में है, इससे मैक्सिमम अलग अलग है। जैसे कि आप समझते हो 60 मीटर, तो वो आपका स्पीड को कंपोनेंट को दर्शाता है। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। फिर आपका आता है थ्रोज है। थ्रोज में भी उन्होंने शॉर्टपुट नहीं रखा, डायरेक्ट शॉर्टपुट, लेकिन बैक थ्रो। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल मॉडल क्वालिटीज हम बोलते हैं। और सी ग्रुप के अंदर 60 मीटर, लॉन्ग जंप, ये तीनों में है। ए ग्रुप के अंदर एक हाई जंप है, बी ग्रुप के अंदर शॉर्टपुट जिसके बदले बैक थ्रो था,
और सी ग्रुप के अंदर 600 मीटर रखा था। तो ये आपका अंडर 14 हुआ। और अंडर 16 में इंडिविजुअल इवेंट भी था और उसके साथ साथ कंबाइंड इवेंट यानी पेंटा। इंडिविजुअल में 60 मीटर था, 80 मीटर हर्डल्स था, 600 मीटर्स था, हाई जंप था। लेकिन हाई जंप में भी सीजर, जो बेसिक हम बोलते हैं, बेसिक सीखते हैं सीजर से, तो वो रखा था और लॉन्ग जंप रखी थी। इसके अलावा जो इवेंट में थे, जैवलिन था, तो जैवलिन में भी 10 मीटर का ही अप्रोच रखा था। और बॉयज के लिए ये जैवलिन का वेट था 600, गर्ल्स के लिए 500 था। और शॉर्ट पुट में भी स्टैंडिंग था, गर्ल्स के लिए 3 केजी और बॉयज के लिए 4 केजी। तो ये इवेंटे थे ये दो ग्रुप के लिए। बहुत ही बढ़िया। नाउ अगर हम एथलीट्स का सिलेक्शन की बात करें, जैसे लिटिल ये चीज ऐसी है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कोई एथलीट्स हमें ये लगता है कि ये बहुत अच्छा था, इससे बदले ये आ गया, ये आ गया, ये तो होता है। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? ये जब नेशनल गेम्स में आप बच्चों को सिलेक्ट करते हैं ये लेवल के ऊपर, जूनियर एथलेटिक्स में, तो क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। तो ये एक इतना बढ़िया ये है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टेट तक नहीं खेल पाते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में उनका नंबर रहता है, स्टेट में नहीं पहुंच पाते, तो वो नेशनल नहीं जा पाता। तो यही एक ऐसा इवेंट है जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आपके आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप फर्स्ट होते हो, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेशन करने को मिलता है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये ABC जो ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उनका ट्रायल्स लिया जाता है और उसमें से पॉइंट सिस्टम होते हैं। हर एक इवेंट का कुछ पॉइंट सिस्टम होता है। तो जिस इवेंट में, फॉर एग्जांपल, ए ग्रुप बॉयज एंड ए ग्रुप गर्ल्स 10-10 आए या 15 आए, 20 आए, जो भी आए, उसमें से सबसे ज्यादा पॉइंट जिस बच्चे का हुआ, तो वो बॉय और वो गर्ल उस इवेंट के लिए उस डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होते हैं। लेकिन इसका क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि जब ये कॉम्पिटिशन होते हैं उससे कुछ वीक्स नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा महीने पहले से आपको आपका एसोसिएशन हो या आपका स्टेट एसोसिएशन हो, इनको पेपर में या आजकल तो टीवी एड्स भी दे सकते हैं, लेकिन एक वेबसाइट हो जिसके अंदर आप डाल दिए तो हर कोई बच्चा उसको जानकर ट्रायल्स के लिए आए। तो ये कुछ चीजें हैं अपने को काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बार अपने अहमदाबाद में होकर मेरे को कई सारे स्कूल के टीचर्स, पेरेंट्स आके मिले कि सर ये कब हुआ, पूछने के लिए। तो हमने कहा कि ये इस तारीख को हुआ, तो उन्हें किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो बहुत कम जो माउथ टू माउथ किसी को पता चला तो वो लोग आकर करे। तो इसीलिए जो आप देखोगे तो परफॉर्मेंस लेवल अगर देखा जाए तो उन्हीं बच्चों का आपको देखने को मिलेगा जो रेगुलर एथलेटिक्स करते थे और जिनको इसके बारे में एक नॉलेज था। तो एक बात है, इसके तो बड़े बड़े बैनर्स लगाए थे, होर्डिंग्स लगे थे कि ये इवेंट होने वाला है, तो नहीं किसी को पता चलने की तो बात नहीं है। मीन्स के ओके, एफर्ट्स कुछ ज्यादा होना चाहिए, अलग बात है, लेकिन एफर्ट्स आर मेड टू एंश्योर दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आर मेड। तो ये तो द थिंग इज, बैनर्स और जो कुछ आपने देखा वो 2 दिन पहले देखा, 2 दिन पहले देखा या 3 दिन पहले देखा। इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इवेंट से जब ये कंपटीशन हुआ 16 से इफ यू गो टू 12th ऑल्सो, मैं तो इसमें रेगुलर जाता हूँ। लास्ट ईयर हुआ था, पटना में हुआ था, बिहार। और हम लोग एयरपोर्ट से उतरे, एयरपोर्ट के हर जगह पे आप जाओ, ऑन द वे आप टुवर्ड्स द पाटलिपुत्र स्टेडियम में हुआ था, आप कहाँ होर्डिंग थे। अगर आपने देखा होगा अपने नेशनल गेम्स के टाइम पे एक अलग ही चीज था, बसों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, रिक्शाओं के ऊपर बैनर्स लगे हुए थे, तो लोगों को पता था। मैं तो बिल्कुल इस ग्राउंड के बिल्कुल यानी 2 किलोमीटर के रेंज में मेरा घर है, लेकिन हमारे वहां पे हमारे फ्लैट में किसी को कुछ नहीं पता, किसी को नहीं। एक आई लाइक टू डिफर हियर जोसेफ, अगर एथलेटिक्स की कॉम्पिटिशंस है तो एथलेटिक्स देखने वाले लोग भी बहुत ही कम होते हैं। लेट अस एडमिट इट। दिस नो, आप कितना भी कर लो, आप नेशनल का इंटरनेशनल यहाँ पर लाके कर दो एथलेटिक्स देखने में, तो कहने का मतलब है कि जनरल अवेयरनेस नीडेड टू बी एनहेंस। ये चीज क्रिकेट के समकक्ष, मेरा कहने का मतलब क्या है, दिस इज एज गुड एज क्रिकेट।
ये लेके चलना पड़ेगा, and that responsibility lies with everybody. मेरा कहने का Yes, मतलब very well ठीक है, said. गवर्नमेंट अशोक जी, शुड मैं डू आपको- दिस, दैट इज वन पॉइंट, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना पॉपुलर क्रिकेट बना है, तो आप देखिए जी। क्यों बना है, उसकी उसकी 1 2 3 4 आप देखिए, यू विल कम टू नो। इसीलिए Exactly. अभी जो रिसेंट पास्ट में जो रिसेंट पास्ट में जो चीजें हो रही है अच्छी, तो ये मेरे ख्याल जी, से जी। और एनहेंस करके ये लोगों के पास पहुंचना चाहिए। योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, बट एट द सेम टाइम यस, द गेम इटसेल्फ और दी एथलेटिक्स, अगर आप कहीं नेशनल लेवल के भी देखोगे तो इतना क्राउड फैच नहीं करता है, ये भी बात सही है। नहीं करता है, बिल्कुल। लेकिन आपको मैं आप ही के जो सवाल में जवाब आपने दे दिया, क्रिकेट की बात की है। आपको पता होगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप या जो भी आईपीएल हो, जो भी महीने नहीं 2-3 महीने 6-6 महीने पहले से आपके टीवी पे, यहाँ पे, वहां पे सब ऐड ही ऐड चलते हैं। अभी खेल महाकुंभ की मैं बात करूं, खेल महाकुंभ अभी होगा स्टेट, उसमें भी ऐसे ही होता है। मैं तो देखता रहता हूँ अपना TV9 गुजराती हो या संदेश हो, ये अपने लोकल चैनल है, ये सभी चैनल के ऊपर आपका एड्स आता है। लेकिन आप मुझे बताएं, मैं तो रेगुलर देखता ही हूँ, इसमें कहीं भी ये होने से पहले ये ऐड नहीं आया। तो आपने जैसे कहा, इसका प्रमोशन और ज्यादा करना होगा। यस यस, बिकॉज इट इज अ जूनियर लेवल। आप कभी कहीं पर अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो बातें होती है वो बहुत ही कम होती है, और जो मेन यहाँ पर हुआ था उसकी अलग है। तो लेट अस नॉट कंपेयर, बोथ थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस। गुजरात ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे वॉन so many medals for the very first time. Yes, करेक्ट। how was I Gujarat would- in this meet? आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट, एंड आई वुड से बहुत जबरदस्त तो नहीं बोल सकते, इतनी बड़ी संख्या है अपनी, और वी वर द होस्ट होकर हमने सिर्फ 7 मेडल्स हासिल कर पाए। What was the medals in the previous athletic meet of the same kind? Patna, where you gone? Patna, I don't remember, but Patna also we had around this much medal, 5 to 6 medals we had there also. But Okay. that's what we were expecting more compared to that, because we were the host. So, but good that at least being a host, we could get at least 3 medals, 3 gold, Uh-huh. 1 silver and 3. The happy part is कि अहमदाबाद में था, और अहमदाबाद की अपने 3 बच्चियां लोकल जो है वो 3 ब्रॉन्ज तो अहमदाबाद से ही आए, जो 7 मेडल में से 3 तो अहमदाबाद के ही आए। तो 2 बच्चे हमारे लविष्का एंड काव्या अग्रवाल जो अंडर 14 में लाए, और धीमही जो अंडर 16 में पेंटाथलॉन में लाए। और इसके अलावा धैर्य भंडारी ने गोल्ड लिया जैवलिन में, किंजल ठाकुर ने गोल्ड लिया ट्रायथलॉन बी ग्रुप के अंदर, और रोशना वाला 60 मीटर्स में अंडर 16 में गोल्ड लिया। तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने गुजरात को एक अपने इंडिया के नक्शा पे लाकर बहुत प्राउड फील करवाया। राइट, अभी कांजी भालिया को भी सुन लेते हैं, उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा है। आइए कांजी भालिया को सुनते हैं। जी जी। આ સ્પર્ધાની અંદર ગુજરાતની તમામ ટીમના ખેલાડીઓએ પણ ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કરી ઇતિહાસમાં પહેલી વખત આ સ્પર્ધાની અંદર 7 મેડલ મેળવેલ છે, જેમાં 3 ગોલ્ડ મેડલ, 1 સિલ્વર અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલ। આ 7 મેડલ સહિત ગુજરાતની ટીમ પણ ખૂબ જ મોખરાનું સ્થાન ધરાવ્યું છે। અને જે ગુજરાત સરકારની વિવિધ યોજનાઓ છે, શક્તિદૂત એકેડમી, DLSS સ્કૂલ, COE યોજના, આ યોજનાઓને લીધે ખેલાડીઓને સીધો જે લાભ મળે છે તેના પરિણામ સ્વરૂપે આપણે આ જોઈ શકીએ છીએ કે ગુજરાતનું પ્રદર્શન રમતગમત ક્ષેત્રે દિવસે ને દિવસે ખૂબ જ સારું થતું રહ્યું છે। ગત નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન જે ગોવા ખાતે થયેલું તેમાં પણ સિનિયર લેવલે ગુજરાતના ખેલાડીઓએ ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કરી અને વધુમાં વધુ મેડલ મેળવ્યા હતા। હાલમાં તાજેતરમાં જ અમદાવાદ ખાતે જે ઇન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ જુનિયર એથ્લેટિક મીટનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જેમાં 600થી પણ વધુ જિલ્લાઓ ભારતભરમાંથી ભાગ લીધેલો, અને 5,500થી પણ વધુ ખેલાડીઓએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ પોતાનું કૌવત બતાવેલ છે। અને અંડર 14 અને અંડર 16ની વિવિધ ઇવેન્ટોની અંદર પોતાનું કૌશલ્ય બતાવેલ છે। આ સ્પર્ધાનો મુખ્ય હેતુ
ભારતભરમાં જે નાની વયના બાળકો છે તેની અંદર રહેલ સ્પોર્ટ્સની જે સુસુપ્ત શક્તિઓ છે તેને બહાર લાવવાનો ઉદ્દેશ્ય છે અને આની અંદરથી ટેલેન્ટ પસંદ કરી અને તેઓને સરકાર દ્વારા ચાલતી વિવિધ એકેડમી વિવિધ સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલોની અંદર એડમિશન આપી અને તેને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી નિષ્ણાંત કોચ દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવે તે માટે ખૂબ જ ટેલેન્ટ હન્ટ દ્વારા આ સ્પર્ધામાંથી ટેલેન્ટનો સર્ચ કરી અને તેને આગળ પૂરતી તાલીમ મળી રહે તે ઉદ્દેશ્ય છે. जैसे काफी कुछ चीजें एथलेटिक्स में बन रही है, स्पोर्ट्स में बन रही है. कौन से ऐसे इवेंट है जो कि हो चुके हैं और आने वाले हैं, कुछ उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं? क्योंकि ये जो एथलेटिक्स मीट हुआ मेरे हिसाब से तो काफी सफल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं. लेकिन और जो मीट्स आने वाले हैं या तो कोई पाइपलाइन में है तो बताइए. अभी अपने गुजरात के लिए अगर मैं कहूँ तो अभी नेक्स्ट अपने आने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का मीट है खेल महाकुंभ का. एथलेटिक्स के रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ. 24-25 इज द डिस्ट्रिक्ट मीट अहमदाबाद में जो होएगा. और उसके अलावा जो नेक्स्ट आएगा इसका स्टेट आने वाला है. डेट्स आर नॉट क्लियर्ड, स्टिल फाइनलाइज, बट दे हैव गिवन द मंथ एज मे. तो नेक्स्ट जो मीट आने वाला है वो है. और बाकी नेशनल लेवल पे तो अभी जो है सीनियर्स में है, लेकिन जूनियर्स लेवल में तो अभी ऑफ सीजन अपना स्टार्ट होगा. तो उसके बाद फिर से अपना स्टार्ट होगा वेस्ट जोन. You said something children का something you said ना? चिल्ड्रंस, ओके. किड्स एथलेटिक्स करके सबसे एक बढ़िया सा एक प्रोग्राम इसी के दौरान हुआ, वो था किड्स एथलेटिक्स वर्कशॉप एंड सेमिनार. और इसके लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स से इसके लीड जो टीम लीडर है कैथरीन had come from New Zealand, और I was also part of that workshop, and 2 of our parents from our own FC Academy was also there. और इससे बहुत ही ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि आप कोई भी ग्रुप में हो, जब आप एथलेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, किड्स एथलेटिक्स का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ किड्स हो तो उनके लिए जो किड्स एथलेटिक्स है वो उनके लिए तो है ही, पर किड्स एथलेटिक्स इज अ प्रोसेस. यानी कोई भी लेवल पे आपको स्टार्ट करना होगा. Athlete who comes at the age of 15 also have to do that. An athlete who will come to me at an age of 21, he will also have to undergo the kids athletics process. यानी फंडामेंटल मूवमेंट और हर मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी जो मोटर क्वालिटी की हम बात करते हैं, वो जब तक आपका क्लियर नहीं होता उसके बिना आप ना तो स्प्रिंट कर पाएंगे, ना तो जंप कर पाएंगे, ना थ्रो कर पाएंगे. तो इसके रिलेटेड किस तरह से आपको डेवलप किया जाता है, और खास करके बच्चे अपने हैं तो उनको किस तरह से करना चाहिए, मोटिवेट कैसा करना चाहिए, उनमें इंटरेस्ट किस तरह से ला सकते हैं, कितना उनका लोड होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो साइंटिफिक लेवल पे स्टडीज किया गया है. तो उसके बारे में एक वर्कशॉप था. तो मैं जो कि लेवल 2 कर लिया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहां जाकर बहुत कुछ नया सीखने को मिला. तो वो एक बहुत ही बढ़िया एक ये रहा किड्स एथलेटिक्स के. Just last question and brief answer. How is the future of Gujarat athletics? National तो हमें मालूम है, हम गुजरात की बात करते हैं, because you are a person who is really sweating hard to get the best out of the whatever available children you have. What do you feel? How is athletics in Gujarat? सी, मैं पहले तो पॉजिटिव बात मैं हमेशा कहना चाहूंगा, और मैं जब भी कुछ कहता हूं तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, टू द इंस्टीट्यूशन दैट इज SAT, और जो भी कोई है इन्वॉल्व करने के लिए, उनके जो भी ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं उनको थोड़ा अच्छी तरह से डेप्थ में जाके एक प्रोग्राम प्लान करना होगा. हम जैसे लोग हैं जो उनके साथ ही है. वी आर नॉट हियर टू नो just put them down. Let's see how is athletics in Gujarat. I wanted your answer in that. Right now the progress is अभी जो सुनो we have अभी जो हमारे पास लिमिटेशन था, whatever plus points we have, यहाँ से एथलेटिक्स कहाँ जा रहा है? यहाँ से एथलेटिक्स तो अभी बेस लेवल से थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, और ये और अच्छा हो सकता है कि अगर हम
ग्रासरूट लेवल पे और इसको फोकस करेंगे तो और जाएगा। जरूर। सबसे बढ़िया बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज कमिंग अप, तो वो सबसे पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। Right. Thank you so much, Joseph Sebastian, for joining me. Thank you so much. थैंक यू। तो दोस्तों ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જબરજસ્ત છે, મહેનત, એવરીબડી ઇઝ પુલિંગ ઇન વન ડાયરેક્શન. હવે ખેલાડીઓને તૈયાર કરવાના છે. જે રીતે ગ્રાસરૂટ લેવલે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, જે રીતે હમણાં વાત થઈ, એ જો પ્રયત્નો વધુ સઘન થશે અને વધુને વધુ બાળકો જો એથ્લેટિક્સ અને તેને લગતી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેતા થશે તો ક્યાંક આપણે લોકપ્રિયતાનો ભાર ક્રિકેટ અને અન્ય રમતો ઉપરથી થોડો ઓછો કરી શકીશું. સો લેટ્સ પુલ ટુગેધર અને ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતને પણ એથ્લેટિક્સમાં નંબર 1 બનાવીએ.